Good morning all students. Discuss the topic of BSc part 1st, paper 2nd, microbiology, mycology and plant pathology. Some discuss of already last recordings like a pathogen types, classification of pathogens, parasitic and non-parasitic pathogens and functions of disease and disease symptoms caused by fungus, disease symptoms caused by bacteria, virus, nematodes and already discuss of fungus, bacteria, symptoms. So, discuss today as symptoms of viral disease. सबसे पहले क्लास BSc part 1st and paper 2nd microbiology, mycology and plant pathology. Already discuss of symptoms. Symptoms caused by fungi, bacteria and today discuss topics symptoms caused by virus. Virus mostly cause of plant body part like a leaf, stem, fruit and flower. Like symptoms, leaf symptoms shown by virus like a chlorosis. Chlorosis is a process of death of chlorophyll pigments A. Chlorophyll pigments A decay by virus, so called chlorosis. तो हम क्या कह सकते हैं कि जब एक वायरस का इन्फेक्शन होता है तो जो प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर धीरे धीरे क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होता है उसकी डेथ हो जाती है और उस पिगमेंट्स की डेथ ही क्या कहलाती है, क्लोरोसिस कहलाती है. इसका एग्जांपल्स की फॉर्मेशन में अपन बात करें तो टोमेटो मोज़ेक, येलो मोज़ेक या येलो मोज़ेक ऑफ ओकरा. नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें येलोविंग. Plant virus infected of plant body part like a leaf. Leaf of death in chlorophyll pigments A. Chlorophyll pigment A and leaf colors are green convert to yellow. Green colors are converted to yellow colors. So leaf colors of yellow like a yellowing. हम क्या कह सकते हैं,
जब लीफ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स की डेथ हो जाती है तो उस डेथ की वजह से जो लीफ का क्लोरोफिल पार्ट है, जो पिगमेंट ए पार्ट है, उसकी डेथ होने से जो ग्रीन का या लीफ का ग्रीन कलर था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, येलोविंग। नेक्स्ट आता है नेक्रोसिस। Necrosis already discussed these topics of repeated topics. Cell death. Cell death are called chlorosis and tissue death. Tissue death and cell death are called नेक्रोसिस। प्लांट की लीफ और प्लांट के स्टेम, अगर स्टेम और लीफ में किसकी डेथ हो, उसके टिश्यू की या उसके सेल्स की डेथ हो, तो वो क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। सो सेल एंड टिश्यू डेथ आर नेक्रोसिस एंड सेल्स पिगमेंट आर डेथ called are chlorosis, pigment death. Pigment death are called क्लोरोसिस। क्या कह सकते हैं कि अगर पिगमेंट्स की डेथ है तो क्लोरोसिस, सेल और टिश्यू की डेथ है तो नेक्रोसिस। वैसे ही लीफ जो है उसके अंदर वैन बेंडिंग और वैन क्लियरिंग स्टार्ट हो जाती है। वैन बेंडिंग एंड वैन क्लियरिंग। जो लीफ पार्ट होता है, स्टेम पार्ट होता है, when clearing and when bendings are clearly stem leaf part like structures, leaf like structure, leaf like structures, and when infected by virus, infected by virus, so veins are clearly, veins are clear, so called are vein clearing, vein clearing. Leaf veins infected by virus and leaf chlorophyll pigments are decay and leaf are clearly, so vein clearing and band formation, and veins are present of band formation by infection, so called are vein clearing. This topics is interrelated between two, vein bending and vein clearing. वैन बेंडिंग और वैन क्लियरिंग टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलेटेड हैं, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर एक वायरस इन्फेक्शन करता है तो लीफ के अंदर सबसे पहले क्लोरोफिल पिगमेंट्स की डेथ होने के कारण जो वेंस हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाती हैं। धीरे धीरे जब ये क्लियरिंग और ज़्यादा बढ़ती है तो उनके अंदर वैन बैंडिंग बैंड बनने लग जाते हैं, और जो क्या कहलाते हैं, वैन बैंडिंग। एंड लास्ट सिम्टम्स ऑफ रिंग स्पॉट, रिंग स्पॉट। जैसे ही वायरस अपना इन्फेक्शन करता है तो प्लांट बॉडी के ऊपर क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, रिंग के स्पॉट बनने लग जाते हैं। यानी कि स्पॉट किसकी वजह से बनते हैं, एक पैथोजन की वजह से। और पैथोजन क्या है, इसके अंदर एक वायरस पैथोजन है। अगर हम इसको एक डायग्राम्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करें कि इट इज़ ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज लीफ बेंडिंग
and when bending and virus are infected leaf spot part। तो ये क्या है, इसका स्पॉट फॉर्मेशन में है। जैसे ही वायरस अपना अटैक करेगा तो ये स्पॉट इस तरीके से प्लांट बॉडी के ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा, इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब अपन इसकी बात करें तो ये इसके सेंटर पार्ट में है, सेंटर ये रिंग के फॉर्मेशन में है। और ये रिंग जो है जब लार्ज साइज में बन जाती हैं तो ये पूरा एक क्या बन जाता है, एक स्पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, स्पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ही एक वायरस एक लीफ के ऊपर अटैक करता है, वायरस आर अटैक ऑफ प्लांट लीफ एंड लीफ आर center formation and concentric ring formation are pathogen attack of leaf part like a spot or ring formation so called are ring spot। स्पॉट जो हैं वो एक रिंग के फॉर्मेशन में बनते हैं। सारे स्पॉट्स टोटली स्पॉट्स आर प्रेजेंट ए कॉन्सेंट्रिक फॉर्मेशन। जैसे फोर एग्जाम्पल्स, टमेटो, रिंग स्पॉट ऑफ पोटैटो, रिंग स्पॉट ऑफ टोमेटो, रिंग स्पॉट ऑफ पपाया, रिंग स्पॉट ऑफ पपाया। पपाया की जो लीफ होती है उसके ऊपर आपने देखे होंगे कि कॉन्सेंट्रिक फॉर्मेशन में क्या बन जाते हैं, एक स्पॉट बन जाते हैं। और ये स्पॉट कैसे होते हैं, रिंग स्पॉट होते हैं, पपाया के प्लांट्स में होते हैं, इसलिए इनका नाम भी क्या रख दिया जाता है, रिंग स्पॉट ऑफ पपाया। सो टोटली 4 symptoms are caused by virus like a chlorosis, like a yellowing, necrosis, vein bending and vein clearing and ring spot। These symptoms are caused by pathogen virus। तो अपन ने जो है वो सिम्टम्स के फॉर्मेशन में किस किस को डिस्कशन कर लिया, एक फंगस को, एक बैक्टीरिया को और एक वायरस को। सो टुडे न्यू टॉपिक डिस्कस ऑफ सिम्टम्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा like mycoplasma is a microorganism so cause of plant part like a leaf, like a stem and like a flower and fruit। तो आज जो है हेडिंग लिखोगे सिम्टम्स कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। caused by mycoplasma, caused by mycoplasma। माइकोप्लाज्मा भी एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो क्या कोज करता है, सिम्टम्स कोज करता है। ये सिम्टम्स जो हैं वो मोस्टली होते हैं लीफ पार्ट पे, जिसके कारण लीफ कैसी हो जाती है, बिल्कुल स्मॉल टाइप की लीफ हो जाती है, इसलिए उस डिजीज़ का नाम भी क्या लग दिया जाता है, लिटिल लीफ, लिटिल लीफ। और माइकोप्लाज्मा की ये डिजीज मोस्टली पाई जाती है ब्रिंजल में। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो भी इसके फॉर्मेशन में होता है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल्स। ब्रिंजल्स जो का प्लांट्स जो है, ब्रिंजल वेजिटेबल्स का प्लांट्स तो आपने सबने देखा ही है, लेकिन उस ब्रिंजल के प्लांट्स के ऊपर कौन इन्फेक्शन करे, एक माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन करे। तो उस माइकोप्लाज्मा के कारण जो ब्रिंजल का प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर जो लगी हुई लीफ है उनकी साइज कैसी हो जाएगी, लिटिल। अब जब सिंपल सी बात है कि लीफ लिटिल साइज की है, इसका मीन्स
प्लांट बॉडी के ऊपर फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। फोटोसिंथेसिस रेट जो है अगर वो डिक्रीज होती है तो सिंपल सी बात है कि बनने वाला फूड मटेरियल भी क्या होगा, क्वांटिटी में लो क्वांटिटी में बनेगा, कम मात्रा में बनेगा। तो जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी क्या होगी प्लांट ग्रोथ भी क्या होगी, लो। जब प्लांट ग्रोथ लो है तो उस प्लांट पे बनने वाले फ्रूट और उस प्लांट पे बनने वाले फ्लावर, यानी कि फ्लावर और फ्रूट दोनों की क्वांटिटी जो है क्वांटिटेटिव फॉर्मेशन में क्या होंगे, वो कम होंगे। जब वो क्वांटिटेटिव फॉर्मेशन में कम होंगे तो ब्रिंजल के प्लांट्स पे लगने वाले फ्लावर और फ्रूट की जो रेट है वो भी क्या होगी, लो क्वांटिटी में होगी। और जो लीफ हैं वो कैसी हो जाएंगी, लिटिल फॉर्मेशन में हो जाएंगी, बिल्कुल लिटिल फॉर्मेशन में। ये पूरी प्रोसेस इसमें है ब्रिंजल के प्लांट्स में, इसके कारण माइकोप्लाज्मा के कारण। किस पे इफेक्ट हुआ, लीफ पे इफेक्ट हुआ। क्या कि लीफ की साइज कैसी हुई, लिटिल हुई। कैसे हुई, ब्रिंजल के प्लांट्स की लीफ के ऊपर माइकोप्लाज्मा के अटैक के कारण फोटोसिंथेसिस रेट उसकी स्लो हो गई। जैसे फोटोसिंथेसिस रेट स्लो हुई तो बनने वाला फूड मटेरियल क्या हुआ, कम क्वांटिटी में मिला। जब भोजन उसको कम क्वांटिटी में मिलेगा तो सीधी सी बात है उसकी ग्रोथ भी क्या होगी स्लो होगी। जब ग्रोथ स्लो होगी तो उसके ऊपर लगने वाले फ्लावर और फ्रूट भी कैसे होंगे, क्वांटिटी में जो फ्लावर और फ्रूट हैं वो भी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में क्या होंगे, स्लो होंगे। उनकी रेट भी क्या होगी, स्लो होगी। ये सब किसके कारण हुआ, एक माइकोप्लाज्मा के कारण हुआ। इसलिए उस सिम्टम्स में कौन सा सिम्टम्स आएगा, लिटिल लीफ सिम्टम्स। नेक्स्ट सिम्टम्स आता है इसके अंदर ग्रेसी शूट। ग्रेसी शूट नाम से पता चल रहा है किसके समान होगा, ग्रास लाइक शूट होगा, ग्रास लाइक शूट। ये डिजीज होती है शुगर केन एंड राइस में। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक शुगर प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो स्टेम कैसा होता है, बिल्कुल थिक और जूसी, जूस वाला होता है। एंड इंटरनोड एंड नोड आर present. Node and internode are present and stem are juicy and thick. But mycoplasma infected shoots grass-like. Mycoplasma infected shoots are grass-like. So thin, without juicy, and internodes are undeveloped and nodes are
very developed. Stems thin, without juicy. Internode are undeveloped and node are very developed. So nodes are very dividation. तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ही नोड्स पार्ट बार बार डिवाइड होता है तो जो इंटरनोड्स हैं उनकी लेंथ क्या हो जाती है, स्लो. जैसे लेंथ स्लो होती है तो इंटरनोड्स पार्ट जो हैं उनका डेवलपमेंट कम होता है और इंटरनोड पार्ट के कम डेवलप होने के कारण नोड पार्ट क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं. और जो स्टेम होता है वो एक ट्रंक लाइक अच्छी हाइट वाला ना होकर के कैसा बन जाता है, एक ग्रास लाइक स्टेम बन जाता है. उसके अंदर जूस की क्वांटिटी या तो होती नहीं है, अगर होती है तो कम होती है, और ऐसा होता है शुगर केन में. तो क्या कह सकते हैं इसके लिए, इसका एग्जाम्पल होगा ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन. ऐसा राइस में भी होता है, लेकिन राइस का जो स्टेम होता है वो यूजलेस होता है, इसलिए हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा वो नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं उसको. लेकिन शुगर केन जो है उसका स्टेम पार्ट ही हमारे लिए यूज़फुल होता है, इसलिए इसके अंदर हम किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, शूट पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. तो इसका एग्जाम्पल्स की अपन बात करें, एग्जाम्पल बोलेंगे अपन इसका, ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन, grassy shoot of sugar cane and rice, grassy shoot of sugar cane and rice. Next topics are discuss the big bud. Big bud. बिग मीन्स लार्ज, बड मीन्स बड फॉर्मेशन में जो प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टेम पार्ट होता है उसके ऊपर धीरे धीरे क्या बन जाती हैं, स्टेम की जो सेल्स होती हैं वो एक बड के फॉर्मेशन में बन जाती हैं, और ब्रांचिंग जो होती है वो एक मेल फॉर्मेशन में आ जाती है, लाइक ए टमेटो. तो जो स्टेम एपिकल सेल, स्टेम के जो एपिकल सेल्स होती हैं वो तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, साथ ही थिक सेल भी क्या करती हैं, रोल प्ले करती हैं. ये थिक जो सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, थिक सेल्स बिग साइज की, और किस फॉर्मेशन में होती हैं, बड फॉर्मेशन. Stem cells like thick cells are big size and formation of bud-like structures, so called big bud. Next, at important symptoms, phyllody. फाइलोडी भी जिसको कहते हैं, वेरी important symptoms. Phyllody are caused of apical cells of stem. Apical cells of stem. Apical cells are multiple divisions, and so like a leaf-like structures. So like a leaf-like structures. हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टेम है उसकी एपिकल जो सेल्स होती हैं वो बार बार अपना डिवीजन करती है. सेल्स स्टेम की हैं, डिवीजन किया बार बार, किसके फॉर्मेशन बना दिया उन्होंने, लीफ का फॉर्मेशन बना दिया. तो हम क्या कह सकते हैं कि एक स्टेम जब
जब एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में आता है तो उसे क्या कहते हैं? फिलोइडी। क्या कहते हैं उसको? फिलोइडी। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है अपना इसके अंदर जो है वो चलते हैं अपन येलो। लास्ट पॉइंट है अपना येलो, येलोविंग, येलोज, इसी का नाम येलोविंग भी होता है, येलोविंग। तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे ही किसी प्लांट बॉडी के ऊपर कोई वायरस अपने डिजीज कोज करता है, प्लांट बॉडी पे एक वायरस अपने डिजीज कोज करता है, तो सबसे फर्स्ट टाइम क्लोरोसिस, सेल डेथ एंड टिश्यू डेथ। So leaf color are yellow. So leaf color are yellow, and it is called yellowing, yellow leaf, yellowing। हम क्या कह सकते हैं? जब एक वायरस, एक माइकोप्लाज्मा डिजीज कोज करे और जिससे लीफ का जो कलर है वो कैसा हो? येलो कलर, लाइक ए क्लोरोसिस, सो कॉल्ड आर येलोज या येलोविंग। तो अपन ने टॉपिक्स जो हैं वो माइकोप्लाज्मा में देखे कि माइकोप्लाज्मा भी एक पैथोजन है। जब वो क्या करता है? एक डिजीज कोज करता है, तो उस डिजीज़ के कोज की वजह से प्लांट बॉडी के लीफ पर, उसके स्टेम पर, स्टेम के टिप पार्ट पे सबसे अधिक उसके संक्रमण के या इन्फेक्शन के क्या दिखाई देते हैं? सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसमें से फर्स्ट सिम्टम्स जो है वो है लेटे लीफ, जो ब्रिंजल में पाया जाता है, इसलिए उसके नाम के बेस पर उसका नाम रख दिया जाता है लेटे लीफ ऑफ ब्रिंजल। सेकंड जो सिम्टम्स है वो शुगर केन में पाया जाता है कि शुगर केन का स्टेम जो है वो ग्रेसी शूट हो जाता है, तो उसके एग्जांपल्स भी ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन होता है। बिग बड जो है वो एक बिग फॉर्मेशन में पाया जाता है और ये पाया जाता है टमेटो में, तो उसका नाम रख दिया जाता है बिग बड ऑफ टमेटो। इसका एग्जांपल्स जो है वो आएगा बिग बड ऑफ टमेटो। नेक्स्ट बात करते हैं फिलोडी, एपिकल स्टेम्स, फिलोडी। और फिलोडी जो है वो मोस्टली पाई जाती है सेसेम, सेसेम ऑफ फिलोडी। इसमें होती है सीसम की, सेसम, सन जिसको कहते हैं सेसम के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं येलोविंग की, और येलोविंग जो है वो मोस्टली पाई जाती है माइकोप्लाज्मा का एक जनरल कैरेक्टर है, जो एक क्लोरोफिल पिगमेंट्स के कारण होता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स धीरे धीरे क्या करने लग जाता है? अपनी पिगमेंट्स को रिमूव करने लग जाता है बॉडी से, तो बॉडी पार्ट कैसा दिखाई देने लग जाता है? येलो कलर का, इसलिए इस पिगमेंट का नाम भी क्या रख दिया जाता है? येलोविंग। नेक्स्ट टॉपिक आर डिस्कस सिम्टम्स कोज्ड बाय वायरस, अपना कंप्लीट है, माइकोप्लाज्मा कंप्लीट है, एंड लास्ट टॉपिक्स आर निमेटोड्स and already discussed of symptoms caused by virus, mycoplasma, bacteria and virus. So last pathogens are nematodes. Nematodes are present in soil. So infected are soil part, plant part like a root, and above the underground and above the surface of stem part. So different types or symptoms show plant bodies by nematodes, virus, bacteria and phytoplasma. Mostly infected parts stem, leaf, flower and fruits, but nematodes are symptoms caused by root part. सबसे मेन जो डिफरेंस है वो क्या है कि एक बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज कोज होती हैं वो एक वायरस के कारण जो डिजीज